With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब, हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam-oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। Hello everyone, my name is Samriddhi Talwar. I have recently secured rank 1 in the Delhi Judicial Services Examination 2023. I'm here to share my journey of my preparation with all of you. And I would like to start by saying that सबकी journey अलग होती है, सबकी preparation की अपनी strategy होती है. तो while I'm here to share my strategy, please take whatever I say with a pinch of salt, and you may use whatever comes handy to you. I'll start with my journey. मैंने अपनी प्रेपरेशन सितंबर 2021 में शुरू की थी, जब मैं फाइनल ईयर में थी कॉलेज में। मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम जुडिशरी गोल्ड है, वहाँ से फाउंडेशन बैच ऑप्ट किया था, और उसके बाद मैंने वहीं से ही प्रेपरेशन की थी। ये बैच अप्रैल 2023 तक चला था। And after I graduated in 2022 from University School of Law and Legal Studies, which is the main campus of the Guru Gobind Singh Indraprastha University, मैंने preparation full time शुरू कर दी थी। And after my coaching got over in 2023 April, I focused completely on self study. Now I would like to start by also mentioning कि मैंने कौन से एग्ज़ाम्स दिए थे। मैंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने फरवरी 2023 में दिया था, और उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन दिया था, जो जुलाई ऑफ 2023 में था। आई कुड नॉट क्वालिफाई द प्रीलिम्स ऑफ आइदर ऑफ द एग्जामिनेशंस। उसके बाद दिल्ली का एग्ज़ाम आया, एंड दिल्ली के मीन्स के बाद आई ऑल्सो अपीयर्ड फॉर द राजस्थान जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024, and I did qualify it with rank 58. Now I'll start and focus on the Delhi examination. The Delhi exam has 3 stages. The first stage is the preliminary stage, which comprises of objective questions, यानी MCQ questions, जो 200 questions होते हैं, और हर question अगर गलत होता है तो 0.25 का negative marking होता है। इसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है। The main stage comprises of 4 subjective examinations. The first is the language and the GK portion, which comprises of current legal knowledge as well as translation and certain précis writing and other portions of language such as essay. The second exam is the Civil Law 1 exam, which comprises of the substantive civil law portion. The third is the Civil Law 2 exam, which comprises of procedural civil law. And the final exam is the criminal law, which comprises of both civil and both substantive and procedural criminal laws. The final stage is the Viva stage, which is the personal interview round. During my preparation throughout, I only focused on mains examination, and for prelims I did practice MCQs along the way, but my preparation was always very mains centric. The first step I took when I decided to give this exam was to analyze past year papers, ताकि हम देख सकें कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से, किस एस्पेक्ट से क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो मैंने प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी सारे जितने मुझे पास्ट ईयर पेपर्स मिल पाए उन सबको एनालाइज किया। आई टुक अ नोट ऑफ इट, एंड इससे मुझे ये भी मदद मिली कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाई, कि कहाँ पे मैं थोड़ा ईजी लेकर भी आराम से मेरा काम चल सकता है, और कहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। मैंने एक और चीज़ करी कि मैंने अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रखा। आई डिड नॉट फोकस ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज, रैदर आई ओनली फोकस्ड ऑन अ फ्यू रिसोर्सेज विच वर बेसिकली माई नोट्स दैट आई मेड इन माई कोचिंग एज वेल एज माई बैरैक्स, एंड अगर मुझे कुछ और कहीं पढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वो भी इनकॉर्पोरेट किया। साथ ही में आई फोकस्ड अ लॉट ऑन करंट लीगल नॉलेज, विच इज़ द रीसेंट केसेस दैट आर प्रेवलेंट, जो आते हैं। मैंने 1 साल तक के केसेस को एनालाइज किया था, उनका नोट बनाया था, एंड आई यूज लाइव लॉ फॉर दिस।
तो दिस वॉज द मेजर सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम बेयर एक्ट्स, because bare acts are the most important part of this examination. And I made sure to improvise my notes constantly. अगर कोई current case आता था जो किसी topic से relevant होता था तो मैं उस case को भी अपने notes में incorporate करने की कोशिश करती थी. Now I start with prelims. Prelims के लिए I started active preparation only once the notification came out, which in our case was in November of 2023. For prelims, I focused on bare acts. I would constantly continue to read and revise bare acts because the exam is very bare act centric. उसके अलावा I used to revise my notes and I also constantly practiced a lot of MCQs. I used a few books. The first was the A.K. Jain book. It is a 3-part book which contains a lot of analytical questions which one can use to practice. Apart from that, I also used the Universal's Guide to Preliminary Examination by Vinay Kumar Gupta. And I also use the Singhal Solved All State Past Year Papers, which contains past year papers of all states, which I used to practice. I also took coaching, prelims test series from 2 coachings, one online and one offline, for practicing the MCQs and getting an idea and a feel of how MCQs are conducted. Both the MCQs I gave at home itself, both the test series I gave at home itself, and I analyzed where I was going wrong. Another thing that I did was I always practiced the MCQs in a time bound manner. इससे मुझे ये मदद मिली कि मैं पेपर के समय पे बिल्कुल समय से पेपर ख़त्म कर पाई, और उसके अलावा आई ऑल्सो डिड अनदर थिंग विच वॉज कि मैं ऑलवेज नेगेटिव मार्किंग को अकाउंट करके चलती थी. आई वुड वेन एवर आई चेक्ड माई MCQs, आई वुड मेक नोट ऑफ कि कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हुए हैं और उसकी वजह से मुझे नेगेटिव मार्किंग कितना हो सकता है. इससे मुझे ये दिस ऑल्सो इनेबल्ड मी टू इंश्योर कि अगर मेरे पेपर में मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, बिकॉज प्रीलिम्स इज ओनली अ क्वालिफाइंग एग्जाम. हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, एंड वी मस्ट मेक श्योर दैट हम ऐसे क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करें जिनसे हमें नुकसान हो सकता है बाय नेगेटिव मार्किंग, विच कैन टेक अस बिहाइंड द कट ऑफ. सो दिस इज वॉट आई डिड फॉर प्रीलिम्स. Another thing was that whenever I checked my prelims questions that I had attempted, I would make a note of every question that I got wrong, and I had a separate notebook for the same, and I would research on why I got the question wrong. इससे I also developed an acumen for research, and मुझे ये भी मदद मिली कि वो सवाल मेरा दोबारा गलत नहीं होता था, तो क्योंकि मैंने उस पर holistic research कर ली होती थी. English is also a component for the prelims examination. For English, although I come from an English medium background, I did practice English MCQs from Arihant's General Objective English by S.P. Bakshi. इसमें MCQs होते हैं जो मैं प्रैक्टिस कर लेती थी. इसके अलावा current legal knowledge is also a component for the prelims examination. For current legal knowledge, I used various sources. The first source was the Universal's Legal GK book, which I referred to. उसके अलावा मैं लाइव लॉ से कॉन्स्टेंटली केसेस को पढ़ती रहती थी. आई वुड मेक अ नोट ऑफ द क्रक्स ऑफ द केस व्हाट वाज हेल्ड. Apart from that, I also made my own notes on certain aspects of current legal knowledge based on the previous paper that had been asked in Delhi. For example, I made a note of the strength of the benches of the Supreme Court and the Delhi High Court. I also made a note of who the present CJI is, who's the present Chief Justice of the Delhi High Court, and other who's such as chairmen of commissions, etc. Now I'll come to the mains examination. For the mains examination, I'll start with the language and GK portion. For the GK portion, again, current legal knowledge is asked and not general knowledge. So for current legal knowledge, what I would do was again refer to live law and also refer to the newspaper. I read the Hindu newspaper and I would read the editorials of the same. And if there was any legal topic that was mentioned in the editorials, I would make a note of what was held, what was stated, and also I made sure to make a note of certain topics because the GK that is asked in Delhi is very predictable. तो I made a note कि कौन से topics ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं, and उनमें से कई topics पूछे गए थे. For example, the Bilkis Bano remission case was very prominent at that time, so I had made a note of that.
Apart from that, the ICJ's intervention in the Israel-Palestine conflict was also asked in the paper, and I had also made a note of the same. तो इसके लिए I would make a brief outline of कि मैं क्या लिख पाऊंगी अगर ये टॉपिक आता है. I had made a note of the same, and मैंने मेंस के एग्जाम से पहले इसको रेफर कर लिया था. Apart from that, I also incorporated the newspaper में if there were any articles that were around these issues, I also mentioned the same. For the language portion, there is translation that is asked, and there is also précis and long essays. For translation, what I had done was I would practice every day translation for, I would refer to an article from again the Hindu, which was in English as well as in Hindi. मैं जो हिंदी का आर्टिकल था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती थी और उसको चेक कर लेती थी, एंड वाइस वर्सा. इसके साथ ही आई मेड अ ग्लॉसरी, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो उस आर्टिकल में थे जो मेरे से गलत हुए थे, मैं उनका एक नोट कर लेती थी, एंड आई रेफर टू देम मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग माई प्रेपरेशन जब तक मेंस एग्जाम हुआ. This also helped me कि मैं एक I would read another article because I was practicing, so it helped me in my essays also. Apart from that, for the précis, I refer to past year papers. जो past year papers में précis पूछे गए थे, मैंने उन्हें practice किया. Another thing that I did was कि the Hindu newspaper में there is a portion called as text and context. उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं उनके साइड पे एक छोटा सा जिस्ट होता है विच कंटेन्स द मेन पॉइंटर्स इन ब्रीफ, अ समरी ऑफ सॉर्ट्स. तो आई वुड रीड द आर्टिकल एंड आई वुड ट्राई टू फिगर आउट एवरी डे कि इसका जिस्ट क्या होगा, एंड देन रेफर टू द जिस्ट. दिस वॉज डन टू इंश्योर कि मैं समझ पा रही हूँ क्या मेन क्रक्स ऑफ द आर्टिकल है या पैसेज है जो हमें प्रेसी में दिया जाएगा, विच इज़ द मेन पॉइंट ऑफ अ प्रेसी. नाउ फाइनली फॉर द लॉन्ग एसे, ये जनरल टॉपिक होता है, इट्स नॉट पर्टिकुलरली लिमिटेड टू लीगल इशूज़. तो आई मेड अगेन अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ सर्टन टॉपिक्स जो पास्ट ईयर पेपर्स में भी पूछे गए थे. फॉर एग्जाम्पल AI, वीमेंस इशूज़, चिल्ड्रंस इशूज़ एक्सेट्रा, एजुकेशन एक्सेट्रा. मैंने इनका एक नोट बना लिया, एंड जब भी मैं एडिटोरियल्स पढ़ती थी न्यूज़पेपर में या कुछ करंट न्यूज़ में होता था, तो आई वुड इनकॉर्पोरेट दैट इन टू दिस आउटलाइन. So I had pointers for all of these. For example, an article, the essay that was asked, one of them was about fake news. तो उसी समय पे there was a case of deep fake regarding Rashmika Madana, who is an actress. So I had mentioned that also in my long essay. वन मस्ट मेक श्योर दैट हम रियलाइज़ करें कि जो फर्स्ट पेपर है ये लॉ का पेपर नहीं है, इट्स ओनली अ पेपर ऑफ लैंग्वेज इन GK. तो हमें मेक श्योर करना है कि हाँ, हमें लीगल पर्सपेक्टिव तो लिखना है, पर हमें उसके साथ साथ एक सोशल पर्सपेक्टिव लिखना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो वी कैन शो द एग्जामिनर ऑफ हाउ आवर थॉट्स फ्लो, व्हाट डू वी थिंक अबाउट सर्टेन इशूज अपार्ट फ्रॉम द लॉ दैट इज प्रेजेंट. For the law papers, I had a fair strategy that I had in mind, and for that what I would do was I refer to past year papers. There's a book by Singhals which has a list of all questions for mains examination that are asked in any state. They are topic wise also and subject wise also. So I refer to that book religiously, and I would make a note of the topics that were asked in Delhi. So one may notice that एक ही टॉपिक है. फॉर एग्जाम्पल डाइंग डिक्लेरेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, उसको कई अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है. समटाइम्स इट मे बी एन एनालिटिकल क्वेश्चन विच अ लॉन्ग क्वेश्चन विच हैज़ फैक्ट्स, जिसमें कि डाइंग डिक्लेरेशन इज ऑल्सो अ कॉम्पोनेंट, एंड समटाइम्स इट मे जस्ट बी अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. तो आई वुड रीड ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, and then I made mind maps for the topic. I would write the topic in the center, and uske around I would make very very short and very very crisp pointers of what I understand from the topic, what I would write in an answer. For this I use the sources which were my notes itself that I had prepared, and bare acts, and also whenever I was doing mains answer writing, I had referred to a book which was the Universal Solved Delhi past year papers for mains. तो अगर इस बुक में से भी मुझे कोई पॉइंटर मिलता था जो मुझे लगता था कि रेलिवेंट हो सकता है इस टॉपिक के लिए, I would mention that also in my mind maps. एंड सो आई हैड टॉपिक की माइंड मैप्स प्रिपेयर्ड, एंड मैं इनको अपने पेपर से पहले रेफर कर लेती थी. क्योंकि ये बहुत कंसाइज थे तो मुझे हेल्प हो जाती थी, क्योंकि मैं फटाफट इजीली रिवाइज कर पाती थी. इसी में ही मैं कोई भी, अगर मैंने कोई लाइव लॉ से कोई केस पढ़ा जो कि मुझे लगता है रेलिवेंट है, मैं इसी में ही वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेती थी.
What this also helped me was कि now instead of having long notes, I had segments of information regarding each topic. तो मेंस के आंसर राइटिंग में क्योंकि वो बहुत टाइम सेंसिटिव होता है, आई वॉज इजीली एबल टू पिक एंड चूज कि मुझे कौन से सेगमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखने हैं rather than blurting out all of the information. With over 2 selections in Bihar Higher Judicial Services, 3 selections in Chhattisgarh Higher Judicial Services, and over 40 selections in 32nd Bihar Judicial Services. भाई साहब हमारा साल तो बहुत लाजवाब जा रहा है। अगर आप भी चाहते हो ना कि आने वाला समय आपका भी अच्छा जाए, we have a golden opportunity for you, a Judiciary Foundation program where you will get to learn from a judge how to become a judge. इस प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें होने वाली है जो आपको चाहिए। Interactive classes, exam oriented study material, dedicated sessions for mains answer writing and for judgment writing. और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनके बारे में और जानकारी चाहिए ना तो नीचे दिए नंबर पर तुरंत कॉल करिए। And I would like to mention that this strategy was given to me by one of my teachers and mentors, Shubham Upadhyay sir. He had told me to make these very, very concise notes and to make these brief outlines जो मैं easily refer कर पाऊँ. Another thing he had very helpfully guided me on was to give as many mocks. I had given as I mentioned, 2 test series for prelims. I had also given 1 test series for mains. And I had given numerous mock interviews because he had guided me to do so. And the logic behind the same was so that I am a part of uncomfortable situations जहाँ मुझे सोचना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ इतने अच्छे से नहीं भी आता होगा, but how am I able to perform in such a situation? Am I able to maintain my calm and composure and answer? This was the logic behind it. As I mentioned, I'd also taken a mains test series. जब prelims का result आ गया था, उसके बाद I'd opted for the same. And इसमें weekly test होते थे for all 4 papers. And I would attempt them and I would submit them and I would get feedback. I did not solely rely on this test series. What I'd also done was कि मैंने दिल्ली के past year papers को मैं weekly before the notification had come मैं weekly attempt करती थी और मैं उन्हें इसी यूनिवर्सल्स की बुक से चेक कर लेती थी. आई वुड मेक अ नोट विद अ डिफरेंट कलर्ड पेन कि मैं कितने गलत कर रही हूँ. दिस ऑल्सो हेल्प मी कि फर्स्टली आई वॉज एबल टू कंप्लीट माई पेपर विच माइट बी डिफिकल्ट इफ वन हैज़ नॉट प्रैक्टिस सफिशेंटली. सो आंसर राइटिंग की मैंने ऐसे बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस की थी एंड आई अटेम्प्टेड अ लॉट ऑफ दिल्ली के पास्ट ईयर पेपर्स. नाउ कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ माई आंसर्स. द फॉर्मेट ऑफ माई आंसर्स वॉज फेयरली यूनिफॉर्म जो मैंने किया था. फर्स्टली मैं हर क्वेश्चन में एक पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन लिखती थी, जो भी उस क्वेश्चन के इश्यूज हैं जो हमें डिसाइड करने हैं या जिसके बारे में हमें एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है. What this does is it enables the examiner to understand that this person has understood what the question demands and will be able to deliver the same. The second component of my answer writing was that I would mention in 3 to 4 lines very briefly मेरा आंसर क्या कंटेन करेगा. अगर कोई लॉ पॉइंट है या कोई बहुत ही प्रोमिनेंट केस है और कोई जो अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें डिसाइड करना है तो मैं उसको 3 से 4 लाइनों में बहुत ही क्रिस्पली लिख देती थी. सो द एग्जामिनर नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम माय आंसर एंड दिस ऑल्सो हेल्प मी नॉट टू गेट कैरीड अवे व्हाइल आई एम राइटिंग माय आंसर्स एंड स्टिक टू द पॉइंट्स जो मैंने ऊपर लिख दिया है. इसके बाद मैं लॉ पॉइंट्स को इलेबोरेट करती थी. आई वुड मेंशन द लीगल प्रोविजन, अगर कोई कनेक्टेड या रिलेटेड प्रोविजन है, कोई केस लॉ है जो रेलिवेंट है, कोई इलस्ट्रेशन है जो मेंशन करना चाहिए, जो कोई कॉन्सेप्ट है, कोई मैक्सिम है, मैं ये सब मेंशन करती थी while also integrating it with the present facts of the case if it was an analytical fact based question. I would always give a conclusion also to my answer जिसमें मैं फाइनल एक आंसर को थोड़ा elaborated फॉर्म में लिखती थी. उसके अलावा मैं आई वुड मेक श्योर कि अगर मेरे पास समय है और मुझे याद है तो मैं पर्पस ऑफ द प्रोविजन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजन या कोई रिसेंट कोई केस लॉ या उसका कोई इंटरप्रिटेशन आया है तो मैं वो भी लिख दूँ. A thing that I did for practicing analytical questions, क्योंकि जैसे हमें पता है दिल्ली में बहुत सारे analytical questions पूछे जाते हैं, तो इसके लिए past year papers तो मैंने रेफर करे ही, पर उसके अलावा once I felt कि आई एम लैगिंग इन दिस फेयर कि मुझे एनालिटिकल क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है या मैं सारे के सारे फैक्ट्स को इजीली अप्रिशिएट नहीं कर पा रही हूँ. तो वन ऑफ माई सीनियर्स हैड गाइडेड मी एंड ऑल्सो टू प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर्स फॉर MP एंड छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान जहाँ पे जजमेंट राइटिंग एक कॉम्पोनेंट होता है.
जजमेंट राइटिंग में भी हम यही करते हैं कि हम फैक्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और हम लॉ को अप्लाई करते हैं। तो मैं उनको डेली के पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करती थी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट आपकी अप्रोच फॉर आंसर राइटिंग इन एनी स्टेट शुड बी वेरी मल्टी-डिसिप्लिनरी। जस्ट बिकॉज एक टॉपिक पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं है आप केवल वो लिखेंगे, आपको उससे कोई रिलेटेड प्रोविजन है तो आपको वो भी लिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अकॉम्प्लिस एविडेंस के बारे में पूछा गया है तो अपार्ट फ्रॉम मेंशनिंग सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, यू मस्ट ऑल्सो मेंशन सेक्शन 114 ऑफ द एक्ट एंड यू कुड ऑल्सो मेंशन सेक्शन 306 ऑफ द CRPC। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हमारे सिविल लॉ 1 के पेपर में डेफेमेशन विच इज ऑल्सो अ टॉर्ट, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो आई मेड श्योर टू ऑल्सो मेंशन द क्रिमिनल लॉ फॉर डेफेमेशन। We can do this in very brief, but this shows that we have a multidisciplinary approach towards the examination. There was no particular page limit that I had for any answer. But what I did was to make sure कि मेरा आंसर एक particular time limit में खत्म हो। I had a set time limit and I would make sure कि all my answers I stop as soon as that time limit has reached. What this does is it enables कि मेरा बाकी का सारा पेपर sacrifice नहीं हो जाएगा and I can be able to attempt all questions. So this is another thing that I did. Now we come on to the interview stage. The interview stage my interview was very short and very concise. I was only asked 3 questions and it lasted for up to around 3 to 4 minutes only. So I think one of the most important things apart from revising your laws is to remain very calm and confident in your interview. मैंने अपने इंटरव्यू के लिए वन थिंग दैट आई डिड was कि मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए। आई गेव अराउंड 8 मॉक इंटरव्यूज़ फॉर दिल्ली एंड उससे पहले फॉर राजस्थान ऑल्सो आई गिवन न्यूमरस मॉक इंटरव्यूज़। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ सेट लिमिट दैट वन मस्ट फॉलो कि इतने मॉक इंटरव्यूज़ देने ही चाहिए, बट अगेन टू डेवलप कॉन्फिडेंस, टू बी इन एन अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने से वो कॉन्फिडेंस मिल सकता है और आपको काम रहना आपको इनेबल कर सकता है कि आप कैसे काम रह के आंसर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज मॉक इंटरव्यूज हेल्प मी टू रेगुलेट माई स्पीड, टू गिव वेरी कंसाइज आंसर्स, तो दैट इज़ वाई आई गेव अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज़। उसके अलावा मैंने कॉन्स्टेंटली अपनी लॉज को रिवाइज किया और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो हम डीजेस के टाइम पे भरते हैं। आई मेड श्योर टू रिवाइज एंड रीड अपॉन एवरीथिंग दैट आई मेंशन इन दैट एप्लीकेशन फॉर्म। इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू में 3 में से 2 सवाल मेरे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ही थे, अबाउट एन आर्टिकल दैट आई हैड रिटन। अनदर थिंग दैट अ सीनियर हैड गाइडेड मी ऑन वाज टू प्रैक्टिस माई सेल्फ फॉर मॉक इंटरव्यूज बाय रेफरिंग टू यूट्यूब पे जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज फ्रॉम वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके पहले के मॉक इंटरव्यूज होते हैं। सो आई वुड प्रैक्टिस दोज, आई वुड प्ले दैट मॉक इंटरव्यू, आई वुड पॉज इट व्हेन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड देन आई वुड प्रैक्टिस एंड गिव एन आंसर माई सेल्फ एज इफ मैं वो उस इंटरव्यू रूम में वो आंसर दे रही हूँ। दिस इनेबल मी टू असेस माई ओन सेल्फ। मैं देख पा रही थी कि कब मैं बहुत ज़्यादा लंबे आंसर्स दे रही हूँ, कब मेरे आंसर्स को बहुत क्रिस्प होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कब वो बेटर फ्रेम हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक जो HR क्वेश्चंस होते हैं किसी भी इंटरव्यू में जो पूछे जा सकते हैं, मैंने एक उनकी भी लिस्ट बनाई थी जो ऐसे मॉक इंटरव्यू से मुझे मिली या मेरे अपने मॉक इंटरव्यू से मुझे मिली, एंड मैंने उसके आंसर्स प्रिपेयर कर लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सच एज व्हाई डू यू वांट टू बी अ जज। सो आई प्रैक्टिस्ड दीज क्वेश्चंस, आई रेफर टू दीज क्वेश्चंस। मैंने इनमें जो HR क्वेश्चंस में आंसर्स लिखे थे, मैंने एक बार अपने इंटरव्यू से पहले इन्हें भी देख लिया था। Now coming to a routine or a schedule, I tend to follow a fixed routine or a schedule. तो मैंने एक ऐसा रूटीन बनाने की कोशिश की थी जिसमें कि सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेपरेशन जितना हो सके वो कवर हो सकें। जैसे मैं कोशिश करती थी मेरे दिन में मैं लॉज को भी रिवाइज कर लूँ, मैं MCQs को भी प्रैक्टिस कर लूँ, और उसके अलावा मैं थोड़ा करंट लीगल नॉलेज का कंपोनेंट, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस करना, थोड़ा ट्रांसलेशन करना, मैं ये सब थोड़ा थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। और आई ऑल्सो ट्राई टू स्ट्रक्चर माई डे इन अ वे। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत एनर्जाइज होती हूँ सुबह, तो मैं सुबह ऐसा टॉपिक उठा लूँ जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी। जैसे मैं सारे लॉ सुबह प्रैक्टिस कर लेती थी, और शाम के समय जब मैं थोड़ा थक जाती थी तब मैं इंग्लिश, ट्रांसलेशन या करंट लीगल नॉलेज का कंपोनेंट प्रैक्टिस कर लेती थी जो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे, ताकि मेरी रुचि उसमें बनी रहे। और इसमें आई वुड लाइक टू मेंशन आई हैड अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम वन ऑफ माई टीचर्स एंड मेंटर्स, कनिष्क देवेश शर्मा सर।
who helped me make these schedules and helped me understand how I can function better within those 24 hours of the day. Another thing I would point out about sir was that every time I talked to him about my preparation, he made sure that I also focus on my own mental health. I do something for my own self. And I think that is what kept me grounded, and that is what kept me going on for such a long time. And I also used 2 free apps during my preparation. The first one is an app called Forest. I used it to account for how much am I studying, when are my best hours for studying, and this enabled me to focus better. The second app is a flashcard app called Anki. I made all my notes on Anki, and every step of the preparation from prelims, mains to the interview stage मैंने इसी ऐप को यूज़ किया, क्योंकि ये ऐप इनेबल करता था कि मैं 2 चीज़ें कर पाऊँ जो याद करने के लिए हमें कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहला एक्टिव रिकॉल, यानी हम अपने दिमाग को फोर्स करते हैं कि वो एक आधी जो हम टॉपिक है उसके बारे में चीज़ों को याद करके बताए. इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग आवर नोट्स, वी फोर्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर थिंग्स. एंड द सेकेंड वाज स्पेस रेपिटेशन, विच मीन्स कि एक फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल्स पे, जो कि ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं, हम एक चीज़ को रिवाइज करते हैं. तो दिस ऐप हेल्प मी विद द सेम. You can also use other apps such as Notion, which can be used for the same purpose. My strategy throughout was to practice through active recalling and through space repetition, and I think that is what helped me remember a lot of topics in a lot of aspects of my preparation. I also think while preparing, one must, apart from focusing on studying, focus on their own mental health and focus on something that they can do for themselves, not only mentally but also physically. And this ensures overall rounded growth and development also. For example, I made sure that I spend some time with my family. I speak to my friends. I enjoy reading books, so I would read books, watch some series during my preparation, and especially while the notification was not in force. क्योंकि जब notification आ जाता है तो हमारा सारा focus ही exam पे हो जाता है, पर उससे पहले और even उसके दौरान हम कुछ कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा काम रहें और जिससे हमारा mind भी relax हो सके. I believe the most important thing in one's preparation is consistency and discipline. हालांकि हमें, मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए कि हम प्रेपरेशन करते रहें. हम चाहे छोटा मोटा ही सही, बट वी टेक वन स्टेप एट अ टाइम, इवन दो इट मे बी अ वेरी स्मॉल स्टेप, बट वी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड. One must also trust themselves and be